آج کل گھر میں صرف ایک ہی ٹاپک چل رہا تھا، شہیر کے بچے کا نام کیا رکھیں گے، اس کی شاپنگ کب سٹارٹ کریں گے، یا پھر اس سے ہٹ کر عروج کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چیز میں روک ٹوک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جبکہ زورش تو بالکل خاموش ہو گئی۔ باریک نے کہا تھا ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بلکہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں گے، لیکن زورش نے منع کر دیا۔ وہ ہر ڈاکٹر سے ایک ہی بات نہیں سن سکتی تھی۔ اگر ایک ڈاکٹر کی رپورٹس میں کلیئرلی یہ بات آ چکی تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو صاف بات تھی وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اور ہر بار ایک نئی امید لگا کر اس اذیت کو جھیل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے فی الحال اس نے اس ٹاپک کو بند کر دیا تھا، لیکن یہ ٹاپک بند نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہفتے کے بعد نمرا اور پھپھو واپس گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایسے میں ان کی بس ایک ہی بار اسے بار بار سننے کو مل رہی تھی، بیٹا وقت ہے اپنی اولاد کے بارے میں سوچ لو، کل کو دیوروں کے بچے ہی پالتی رہ جاؤ گی، جس طرح تمہاری چاچی ساری زندگی اپنی جیٹھانی کے بچے پالتی رہ گئی۔ اور ان کی یہی ساری باتیں اسے بہت کچھ الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ بظاہر کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن تنہائی میں یہ ساری باتیں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ جی تو مسٹر زران شاہ، کیسی رہی آج کی سماعت؟ وہ کافی جلدی گھر آ گیا تھا۔ جب عبادت کو کچن سے لگے دیکھ کر اس نے فوراً کچن کی طرف جب عبادت کو کچن میں لگے دیکھا، اسے آتے دیکھ وہ کچن سے بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ بہت تھکا دینے والی۔ اس لائر نے پھر سے تاریخ مانگ لیا کیس کا حل نکال نہیں پا رہا تو ہار مان لے، لیکن نہیں، تاریخ پر تاریخ لیے جا رہا ہے اور کیس کھینچتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے بھی دور ہوں اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ تو یہ تو بری بات ہوئی آپ کے ساتھ، مجھ سے پوچھے نا کہ میں نے کیا کیا ڈیٹیلنگ کیا۔ وہ خوش ہوتے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے بولی، میں نہیں پوچھتا کیا کر لو گی۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا تھا، لپسٹک اچھی نہیں ہے، چینج کرو۔ یہ تو غلط بات ہوئی، میں نے آپ سے پوچھا تو آپ بھی بدلے میں مجھ سے پوچھنا چاہیے نا میرے کیس کے بارے میں۔ سنڈے کو شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنی بولے جا رہا تھا اب تک، جبکہ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی اپنی بات پھر سے وہیں شروع کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کسی کا فون آیا تھا، وہ فون پر مجھے دھمکیاں دے رہا تھا اور اس نے مجھے 5 کروڑ کی آفر بھی کیا۔ وہ قتل والی بیٹی جو بیچنے کی، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا 5 کروڑ لے لو، اس کیس کو ختم کر دو، لیکن پھر سنیں میں نے آگے سے کیا کہا۔ میں نے کہا 5 کروڑ کو آگ لگا دو، لیکن تمہیں جیل میں بھیج کر ہی دم لوں گی۔ وہ بڑی بہادری سے اسے جواب سنا رہی تھی، بے وقوف لڑکی، اتنی اچھی آفر ٹھکرا دی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے ساتھ لیے روم کی طرف بڑھنے لگا تو عبادت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس فضول سی بات کا؟ وہ اس کے ساتھ آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مطلب بہت صاف ہے، تم نے بہت اچھی آفر کو ٹھوکر مار دی۔ 5 کروڑ، 2.5 کروڑ تم اس عورت کو دے دیتی، کون سا یہ کیس جیت کر اسے کچھ مل جائے گا؟ اپنا زیور تک بیچاری بیچ رہی ہے، اور باقی کے 2.5 کروڑ سے اپنا بینک بھر لیتی، لیکن نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تمہاری طرح عقل کے اندھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ حیرانگی سے اس کے پیچھے آئے۔ ایسی آفرز کو ٹھکرانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے کلائنٹ سے مشورہ کرنا چاہیے میری جان، کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ 2.5 کروڑ بہت بڑی رقم ہے، اس کی زندگی سیٹ ہو سکتی تھی، لیکن تم نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کیا۔ ناظمہ کو اپنے شوہر کے لیے انصاف چاہیے مسٹر زران شاہ، وہ غصے سے بولی۔ یس میری جان، لیکن تمہیں آفر ریجیکٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ناظمہ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے رقم کے زیرو کا اندازہ لگا کر وہ اپنا فیصلہ بدل لے۔ خیر اب یہ ٹاپک بند کرو، ادھر آ کر میری تھکاوٹ کا حل نکالو، تھک گیا ہوں بہت۔ زران آپ اتنے بے حس کیوں ہیں؟ کسی کے جذبات، کسی کی محبت آپ کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے؟ وکالت میں جذبات نہیں، عقل سے کام لیتے ہیں عبادت۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ چیز سمجھنے میں ابھی تمہیں تھوڑا اور وقت لگے گا۔ اس وقت آپ مجھے بہت برے لگ رہے ہیں۔ میں نے کیا کیا برا ایسا؟ تمہیں وہ آدمی میں نے کیا کیا ہے برا؟ تمہیں وہ آدمی لگنا چاہیے برا جس نے تمہیں آفر دی، یا پھر وہ عورت جس کے لیے تم نے اتنی بڑی آفر ٹھکرا دی۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، اس لیے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تم نے اس آفر والے کو میرا نام تو نہیں بتایا تھا نا؟ کچھ یاد آنے پر وہ بولا تھا۔ نہیں، آپ نے منع کیا تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اب جب کیس کے پیپرز ان کے گھر تک جائیں گے تبھی انہیں پتہ چلے گا کہ لیگل آرڈرز کس کی طرف سے آئے ہیں۔ گڈ مائی اسمارٹ پرنسس۔ وہ اس لمحے ناظمہ کی ٹینشن کو اپنے دماغ سے نکالے زران کو محسوس کرنے لگی، جو سچ میں اس وقت بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ پچھلے 2-4 دن میں وہ دن رات ایک کیے عائشہ اور دعا اسی کام پر کام کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ صرف انٹرنشپ اسٹوڈنٹ کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، ایسے معاملوں میں ان کے لائرز بھی دن رات ایک کرتے تھے، اور زران کی محنت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ آئی لو یو عبادت، اب بھی برا لگ رہا ہے تمہیں؟ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو وہ کچن میں کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی طرف آیا۔ عجیب سی بدبو گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے نظر پورے گھر پر دوڑائی۔ پورے گھر میں صرف ایک میز ہی ٹھیک تھا، صاف لگ رہا تھا، باقی صفائی کی تو گئی لیکن ہوئی نہیں تھی۔ ہاں تو میڈم کہاں تک پہنچی
आप, वो पीछे से बोला। तो वो उछल कर सीधी हुई, जबकि उसके अचानक सीधे होने पर ज़बर का बेसाख्ता कहकहा गूंजा। वो हंसने पर आया तो फिर हंसता ही चला गया, जबकि वो सामने खड़ी बस उसे हंसते हुए देखती मुंह बिसोर रही थी। लड़की, ये क्या हालत बना कर रखी है तुमने अपनी? ज़बर ने उसे देखते पूछा, जिसके पूरे चेहरे पर आटा लगा हुआ था, हाथों पैरों के साथ कपड़े भी आटे में ही भरे हुए थे। क्या हालत मतलब? वो हैरानगी से पूछने लगी। मतलब ये कि ये क्या हालत बना रखी है तुमने, पूरे चेहरे पर आटा लगा है। वो आगे बढ़ते हुए वहीं से टिश्यू लेकर उसका चेहरा साफ करने लगा। वो मैं खाना बना रही थी, उसने उसे बताया। और तुमने यकीनन ये खाना बनाया होगा। वो सामने रखी छोटी सी हांडी को देख रहा था जो गैस के ऊपर रखी थी। हाँ, मैंने कोशिश किया। एक दफ़ा मेरी मुलाजमा ने चिकन बनाया था ना, तो मैंने भी बना लिया। उसने ऐसे ही बनाया था, उसने फ़ौरन खुश होते हुए कहा। लेकिन ये जलने की स्मेल किधर से आ रही है? कुछ जलाया है तुमने? वो किचन की हालत देखता वहीं से नैपकिन उठाकर शीट साफ करने लगा। जलाया तो नहीं, बस प्याज थोड़ी सी ब्लैक हो गई थी, और मुझे टमाटर का समझ नहीं आ रहा था कि उसको भी ब्राउन करते हैं या सिर्फ प्याज को ब्राउन करते हैं। मेरे पास फ़ोन नहीं था, वरना मैं अपनी मुलाजमा से ही पूछ लेती। वो आटा गूंथते मसरूफ से अंदाज में बोली तो ज़बर ने एक शक की निगाह उसके आटे वाले बाल को देखा। आटा गूंथने का अंदाज बता रहा था कि इसने ज़रूर कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दिया। प्याज ब्लैक हो चुकी थी और टमाटर का उसे पता ही नहीं था ब्राउन करनी थी या फिर ब्लैक, मतलब साफ था उसे खाना बनाना नहीं आता। मेरा काका, इससे पहले कभी खाना बनाया है तुमने? वो हैरत कंट्रोल करता पूछने लगा। हाँ, बहुत बार, उसने फ़ौरन झूठ कहा तो ज़बर को थोड़ा सुकून मिला। मतलब उसे खाना बनाना आता था। तो फिर प्याज कैसे जलाई? मेरा मतलब है ब्लैक कैसे हो गया प्याज, और तुम्हें टमाटर का भी नहीं पता चला? वो फिर से शक की हुआ था। साथ साथ उसके हाथ काफ़ी तेज़ी से किचन की सफाई में मसरूफ़ थे। पहली दफ़ा चिकन बनाया है ना? उसने मुस्कुरा कर कहा। इतना गंदा कि चिकन था कि मैंने 10 दफ़ा धोया। वो फिर से बोली, सॉरी, चिकन गंदा था। वो हैरत से उसे देखने लगा। और नहीं तो क्या, बहुत मेहनत की है मैंने साफ़ करते करते, उसने मुंह बनाकर बताया तो लब मुस्कुरा गए थे। अब वो चिकन का नज़ारा करना चाहता था जो इतनी मेहनत के बाद बना था, लेकिन उसने जैसे ही ढक्कन उठाया था अजीब सी बदबू उसके नथनों से टकराई। अंदर कुछ सफ़ेद सा था, बहुत अलग सा। वो हैरत से अंदर मौजूद चीज़ को देख रहा था। वो जो भी था खाने लायक हरगिज़ नहीं था। इसमें चिकन तो बीच में आराम से बैठा था, जबकि पानी की तरह बहती हुई कोई चीज़ साइडों से गुजर रही थी जो पूरी तरह से ब्लैक थी। उसे खाना नहीं बनाना आता था, समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये क्या है? उसने हैरत से पूछा। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो उसकी शाही डिश को कौन सा नाम दे। चिकन के एक भी पीस को अलग नहीं किया गया था, वो पूरा सही सलामत अंदर बैठा हुआ था। सालन है, उसने फ़ौरन बताया, जबकि उसकी साइडों से बहते काले पानी को वो देख रहा था। क्या तुमने इसमें चाय पत्ती डाली है? वो काले पानी को देखते अंदाज़ा लगाने लगा। वो चाय पत्ती थी? मुझे लगा वो मसाला है। अब वो रूहान सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। तुम्हें मसाले और चाय पत्ती का फ़र्क नहीं पता, और तुम्हें खाना बनाना आता है? अब के वो उसकी शाही डिश को छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझे इटालियन फूड बनाना आता है, वो फ़ौरन बोली। और यकीनन इटालियन फूड में मसाले की जगह पत्ती डालते हैं, उसकी बात काटते बोला। शनाया कभी किचन में कदम रखा था? वो उसके बोलने से पहले ही पूछने लगा। जब उसने सर झुकाकर किसी मुजरिम की तरह नफ़ी में सर हिलाया, तो सुबह ये बात बताते हुए मौत आती थी तुम्हें? वो गुस्सा हुआ। मुझे खाना नहीं बनाना आता, सफाई करना भी नहीं आता। प्लीज़ आप मुझे तलाक मत दीजिएगा, वरना मिकी भैया मुझे मार डालेंगे। मुझे डर था कि अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे। मैं मरना नहीं चाहती। वो अचानक ही आंसू बहाने लगी तो वो घबरा गया, जबकि वो उसके करीब आते आहिस्ता से उसका वजूद थाम कर खुद से लगा गया। शनाया मेरी जान, मैं इतनी सी बात पर तुम्हें क्यों छोड़ दूंगा? क्या हो गया तुम्हें? कम अज़ कम बता तो देती मुझे, मैं बाहर से ही कुछ खाने को ले आता। इसका मतलब है तुम खुद भी सुबह से भूखी बैठी हो? उसने हैरत से उसे देखा। वो खुद भूख का कच्चा था, दूसरे की भूख की अहमियत भी समझ सकता था। वो फ़ौरन हाँ में सर हिला गई। मासूमियत ही मासूमियत थी। वो उसे एक दफ़ा फिर से खुद में छुपा गया। कैसा शोर था वो! उसकी बीवी सुबह से भूखी थी और वो उल्टा उससे काम करवा रहा था। हाथ धो अपने। वो उसके आटे से लथपथ हाथों को देखता उसे वॉश बेसन के पास लाया। बेवकूफ़ लड़की, जाओ चेंज करके आओ, तब तक मैं कुछ खाने को बनाता हूँ। वो उसकी हालत देखते उसे ज़बरदस्ती कमरे में भेज चुका था, जबकि वो अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की तरफ फोल्ड करता जल्दी जल्दी अपने पेट की आग बुझाने का इंतज़ाम करने लगा था। अस्सलामुअलैकुम, क्या मैं मिस इबादत से बात कर सकता हूँ? उसने जैसे ही फ़ोन उठाया था दूसरी तरफ से उसे आवाज़ सुनाई दी। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वालेकुम अस्सलाम। जी नहीं, इस वक्त मिसेज़ इबादत ज़रान शाह बहुत मसरूफ़ हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकती। वो बेनियाजी वाले अंदाज में बोली। ओह हेलो मैडम, ज़मीन पर आ जाओ, ज़्यादा उठने की ज़रूरत नहीं। आई बड़ी मसरूफ़ तरीन हस्ती, 15 मिनट का ब्रेक मिला है, कोई अच्छी सी बात करो जिसे सुनकर दिल खुश हो जाए। वो फ़ौरन आप जनाब से हक़ इस्तेहक़ाक़ पर आ गया। ज़रान, आप परेशान बिल्कुल मत हो, ये केस आप ही जीतेंगे, मुझे आप पर पूरा यकीन है। ईज़ी होकर फ़ाइट करें। वो अभी बोल ही रही थी कि ज़रान उसकी बात काट गया।
हाँ तो केस तो मैं ही जीतूंगा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। तुम्हें क्या लगता है मैं परेशान हूँ, टेंशन लेकर तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ? इबादत जान, मुझे इन छोटे छोटे केसेस की कभी कोई टेंशन नहीं होती, और अगर मुझे कभी कोई टेंशन होगी ना तो कम से कम तुम जैसी जज्बाती बंदी को कभी फ़ोन नहीं करूँगा टेंशन में। पता चले कि मेरी टेंशन ख़त्म करने के बजाय खुद बैठ कर रोने लग गई हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो फिर क्यों फ़ोन किया है बताएं, टाइम नहीं है मेरे पास। वो अच्छा खासा बुरा मना गई, बोर हो रहा हूँ इसलिए तुमसे कोई अच्छी बात सुनना चाहता हूँ। मैं कोई रोमांटिक बात सुनना चाहता था, तुम रोमांटिक तो दूर बोरिंग ही बातें करोगी। खैर तैयार रहना, आज की हेयरिंग ख़त्म करके शॉपिंग पर जाएंगे। लेकिन क्यों, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। ज़रा तुम्हारी सारी लिपस्टिक्स को उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा और नहीं ला कर दूंगा। इबादत अभी बोल ही रही थी कि वो उसकी बात काटते बोला। इबादत ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर रोके कहा, जबकि वो मज़ीद एक दो बातें करता अपनी समात सुनने के लिए जा चुका था। थोड़ी ही देर में शनाया चेंज करके बाहर आई तो वो तकरीबन खाना तैयार कर चुका था। सुबह वाला नाश्ता एक दफ़ा फिर से बनाकर वो टेबल पर लगा चुका था। मुझे सिर्फ यही बनाना आता है, लेकिन इससे मेरी और तुम्हारी भूख का हल निकल आएगा। वो मुस्कुराते हुए उससे बोला, जबकि वो उसके पास बैठ गए। लेकिन काफ़ी देर उसने खाना शुरू ना किया तो वो हैरत से उसे देखने लगा। क्या हुआ, अब खाना खाओ ना, उसने उसे देखते हुए कहा। जब उसने अपना हाथ ऊपर किया जिस पर अच्छा खासा कट लगा हुआ था, वो परेशानी से उसका हाथ थाम चुका था। ये क्या हुआ शनाया तुम्हें, वो परेशानी से पूछने लगा। प्याज काटते हुए वो बस इतना बताकर रोने लगी, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता उठकर उसके पास आया। उसके कटे हुए हाथ से और इस कटे हुए हाथ से तुम आटा गूंद रही थी। वो छोटे छोटे निवाले बनाकर उसके मुंह में डालता पूछने लगा, आप ही ने तो कहा था खाना बनाना है। वो आंसू रोकती बोली, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता छोटे छोटे निवाले उसके मुंह में डालने लगा। मिसेस शनाया ज़बर शाह, तुम्हें खाना बनाना ना आता हो, तुम्हें घर साफ करना ना आता हो, तुम्हें दुनिया का कोई भी काम ना आता हो, तब भी ज़बर शाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो आहिस्ता से उसके माथे पर लब रख कर फिर से उसे थाम कर खुद से लगा गया, जो कब से उस डर का शिकार थी कि कहीं वो उसे छोड़ ना दे, कहीं दूर जा सोया था अब ये डर। वो कमरे में आया तो अरूश बेड पर लेटी थी। उसे देखते ही उठकर बैठ गई। मम्मा कह रही हैं कि रूम चेंज करवा रहे हैं, मुझे नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। उसने आकर जैसे नई खबर सुनाई। मुबारक हो मेरी जान, तुम पर मज़ीद पाबंदियां लगाने की प्लानिंग की जा रही है। मम्मा अब तुम्हें अपने पास रखेंगी। वो बड़े मज़े से कहता उसकी गोद में आकर लेटा था। शहीर प्लीज़ कुछ करें ना, ऐसे कैसे चलेगा, हर बात पर पाबंदी, मैं तो उठते बैठते पाबंदियों का शिकार हो रही हूँ। वो बेबसी से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। कदर करो मेरे घर वालों की मोहब्बत की कि इतना शाही ट्रीटमेंट अब तक किसी को नहीं मिला। वो मुस्कुराते हुए बोला, पता है मुझे, आप मेरी हालत के मज़े ले रहे हैं ना, मेरी जगह आप प्रेग्नेंट होते तो आपको पता चलता। अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो इतनी पाबंदियाँ, आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। आगे का सोचते वो परेशानी से बोली थी, आगे वो होगा जो मंजूर खुदा होगा। वैसे तुम्हें बचाने के लिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया है। वो बड़े मज़े से बोला, बीच का रास्ता, कैसा रास्ता, वो बेकरारी से पूछने लगी। तो वो अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल कर उसके हवाले कर गया। ये क्या है, वो लिफाफे को हैरत से खोलते हुए बोली। लेकिन जैसे ही उसके बीच में मौजूद 2 टिकट्स उसके सामने आए, वो चीख उठी, हम कराची जा रहे हैं। वो उसके चेहरे पर बेयकीनी सी थी। हाँ मेरी जान, हम कराची जा रहे हैं तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए, उसने मुस्कुरा कर कहा, जबकि बाबा के जिक्र पर वो परेशान हुई। वहाँ जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम लोगों की शादी बेसिकली तुम्हारे बाबा की मर्ज़ी के साथ हुई है। वहाँ जाकर हमारे सारे राज खुल जाएंगे। ये जो तुम्हारे अंदर थोड़ा थोड़ा शक अब भी बाकी है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा जब तुम्हारे बाबा तुम्हें खुद बताएंगे कि उन्होंने मुझे वो सब बोलने के लिए कहा था। फ़िलहाल मैं इस चीज़ पर कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए तुम भी कुछ नहीं बोलोगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि वो उसके लबों पर हाथ रखकर वापस उसकी गोद में सर रखकर लेट गया, जबकि वो कुछ बोले बिना कितनी ही देर उसकी बंद आंखों को देखती रही थी। हाँ वो उस पर एतबार करने लगी थी। वो जो भी था वो उससे आगे बढ़ चुकी थी, उसके साथ आगे बढ़ चुकी थी। वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। शहीर हर लिहाज से एक परफेक्ट हस्बैंड था। उसके दिल में अब भी बहुत कुछ था, लेकिन वो शोहर की नाफरमानी करके अपने खुदा को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार थी। लेकिन जो कुछ शहीर ने उसे बताया था उस पर यकीन करना भी तो आसान ना था। बाबा उसे खुद क्यों कहेंगे, वो उनकी बेटी पर कोई इल्ज़ाम लगाए, वो क्यों अपनी बेटी को खुद बदनाम करेंगे। वो ये सब उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं पाई थी क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी थी।